Uh, Hello, am I audible now? Yes. Yeah. Hello, everyone. Thank you for joining the session. Welcome, everyone, for joining the session of healing session with Dr. Vinod Jain Luia. Today, we are going to see how we can heal ourselves naturally. We'll discover how we can treat or manage various illnesses without medicines through timely tested Indian healing wisdom. In this session, Dr. Vinod Jain Luya will guide us through how lifestyle, through diet, yoga, or natural therapies, we will be able to heal ourselves. This session is organized by Goodwill Bring Good, which which reflects the belief that positive actions, intentions, and choices naturally create positive outcomes in life. So, if we do good will naturally happen with us in some way or the other. In this session, what we are going to learn in today's session, in the overall session, what we are going to see is how diseases originate from our lifestyle, from the lifestyle what we follow. That is the main reason because of which we face many diseases or any illnesses. How we can treat some common or chronic illness without any medicines or surgeries. Uh, Disease specific diet plans, role for yoga, pranayam, how we can detoxify our body, prevent illness, and we will have an interactive session with Dr. Jain, sir. The most commonly conditions which we will go through in the coming sessions will be on diabetes, blood pressure, joint pain, digestive problems, skin problems, stress, and lifestyle. In today's session, we are going to go through the session of diabetes. What is the reason for this? How we can heal it naturally, what are the common problems the people face. All these things will be addressed by the sir today. Uh, in order to give introduction about Dr. Vinod Ji, he has over 25 years of experience and is the founder of Sri Mahavir Pran Seva Sansthan Trust. He has successfully treated thousands of patients with unique Pran Seva Paddhati with an holistic approach without any medicines, just through the therapy, through natural therapy, yoga, acupressure, by following the good lifestyle and through proper diet, we can heal any disease which we are facing. So his main motive is true healing begins when we align our lifestyle with nature. He is also into community initiatives like in medical camps, health awareness programs, environment conservations. He also helps orphan children and is also into animal welfare activities. Why should we attend this session is mainly you'll be able to learn Indian ancient methods, how you'll be able to heal yourself naturally without any medicines or any operations. I will just, uh, Ashish ji, I'll just hand over to you. You can continue. जी मैम, थैंक यू सो मच एंड सभी लोगों से सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं थोड़ा-सा लेट हूँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है इस बहुत अच्छे सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे नेचुरोपैथी की, सेल्फ हीलिंग की, नेचुरल हीलिंग की। बेसिकली मैं एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट हूँ और मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम थी। जिससे मैं समझ सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में अगर हम दवाइयाँ लेते हैं, तो क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्या-क्या प्रॉब्लम होती हैं। तो इंडिया में स्पेशली और बहुत सारे लोगों को पूरे वर्ल्ड में नेचुरल हीलिंग और सेल्फ हीलिंग, नेचुरोपैथी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसीलिए आज का जो सेशन है हमारे संदीप सर की तरफ से हमारा
जो ग्रुप है गुड विल ब्रिंग गुड, उसकी तरफ से हम लोग कर रहे हैं, और जिसमें हमारे मुख्य अतिथि जी हैं डॉक्टर विनोद जैन जी। उनके साथ में हम इस चीज को करेंगे। जिनको काफी अच्छा अनुभव है, कई वर्षों का अनुभव है, जिन्होंने खुद को ठीक किया सबसे पहले, उसके बाद बहुत सारे लोगों को ठीक किया, हजारों लोगों को। स्पेशली कोविड टाइम में जब पूरी दुनिया कोविड से लड़ रही थी, इन्होंने बहुत से लोगों को उससे ठीक किया है। हजारों की संख्या में लोग इनसे हेल्प ली है, और इन्होंने बहुत से लोगों को मदद किया है। उसके बावजूद मैं अगर आप अपनी बात करूं, मैं खुद एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट हूं, पिछले 8 साल से बीमारियों से लड़ रहा हूं। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट का क्या होता है, एक बीमारी ठीक होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी ठीक होती है तो तीसरी शुरू हो जाती है। तो जब मुझे इसके बारे में पता चला, तो मैं भी इसके बारे में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं भी जानना चाहता हूँ आपकी तरह। तो क्यों ना हम खुद के डॉक्टर खुद बने, जैसा कि हमारे विनोद जैन जी कहते हैं। स्पेशली आज का जो सेशन है डायबिटिक पेशेंट के लिए है। मतलब है तो सभी के लिए, सेल्फ हीलिंग के बारे में जानकारी होगी, और भी चीजों के बारे में बात होगी। तो आज जो विनोद जैन जी हैं, जो बात करेंगे, समझाएंगे हमको सेल्फ हीलिंग क्यों जरूरी है, इससे क्या बेनिफिट है, किस तरीके से करते हैं, बेसिक सिंपल स्टेप्स क्या है जो हर एक व्यक्ति कर सकता है। आई थिंक इतना मैं काफी कह चुका हूँ। ये जो मीटिंग है हमारी गुड विल ब्रिंग गुड के अंतर्गत हो रही है, हमारे संदीप सर इसके होस्ट हैं। मतलब जो ग्रुप है हमारा, वो संदीप सर के द्वारा बनाया गया है। बेसिकली 2 लाइन में और बोलना चाहूंगा। गुड विल ब्रिंग गुड नाम थोड़ा सा सिंपल लगता है, समझ में आता है कि अगर हम अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा। ये हमारे संदीप सर की सोच है कि अगर हम किसी का अच्छा करते हैं, किसी का भला करते हैं, तो ओवरऑल घूम के वो हमारे पास ही आता है। किस फॉर्म में आता है ये हमें नहीं पता। सो हम भी इसी पर फोकस करते हुए, हमारा कैसे भला होगा उस पर ध्यान नहीं है। हम बस ये चाहते हैं कि हमारे आसपास हमारा देश, हमारा घर, हमारे लोग, फिर दुनिया, इन सभी का भला हो। और हम लोग उसी पर ट्राई कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोगों के साथ अच्छा हो। स्पेशली हमारी तरफ से जितनी मदद हो सकती है उतनी हम करें। हम चाहते हैं कि बहुत सारे लोग बेनिफिट लें, इसके लिए हम लोग बहुत सारे सेशंस करते हैं। रेगुलर हमारी क्लासेस चलती है, जिसमें हम सोशल मीडिया से रिलेटेड बातचीत करते हैं। सर की वजह से हमारी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। कुछ लोग डिसेबल हैं, कुछ लोग नॉर्मल हैं। बेसिकली हम सभी का वेलकम करते हैं, जो भी लोग काम करने के इच्छुक हैं, जो भी लोग अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। मैं इनवाइट करूंगा खुशबू मैम को। खुशबू मैम, आप एक्सप्लेन कर चुके हो अपने बारे में, अपना जो कुछ भी कहना है। खुशबू मैम। Yes, I have finished the session. So thank you so much, Ashish ji, for sharing all the details. Since we have both the like we have people who know Hindi, and there's few people who have joined from USA who are not aware or not comfortable with Hindi. So we will have a mixed session wherein sir will discuss about the problems, and we will describe or translate in Hindi and English both. And if anyone has any queries, then you can just raise your hand in the Zoom session, so that after the session is completed, we can connect with you, and we can solve your queries. And in the last, we will also have interactive sessions wherein you can ask your questions, you can ask your queries and get it resolved. So let's begin with the session of natural healing. And the topic for the today is diabetes. So, Doctor, sir, I will just request you to begin with the session. Namaskar, everybody, नमस्कार। and welcome those who have joined this session. And especially, I'm very much thankful to Sandeep ji, who has managed all this. So, thank you so much. Today, is the session we are doing for diabetes. Diabetes is a very big challenge for everybody in all over the world, and that people are very panic how it can be get it done cure, but it's not. I don't think it's impossible. So first off, the first point for this problem, I think everybody has to take care themselves about their health. And the basic reason for this diabetes is lifestyle. Like
there's no any fixed time for sleeping, eating. And the big problem, what to eat, when to eat, where, and how much. डॉक्टर सर, आई एम रियली सॉरी, मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, उसके लिए माफी चाहूंगा। बस अगर आप हिंदी में थोड़ा बात करें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, तो अच्छा लगेगा हमको। ओके ओके। ओके। खाने पीने के पीछे जो 5 पॉइंट की मैं हमेशा हर जगह बात करता हूँ, जो सारी बीमारियों पे लागू होती है, उसमें 5 बेसिक जो पॉइंट्स हैं वो है क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है और कब खाना है। अगर चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे यूरोप हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, कोई सा भी देश हो, हर जगह मौसम तो सभी जगह है, और उन्हीं मौसम के हिसाब से उसी अनुसार फल, फूल, अनाज, सब्जियां, सब चीजें उस हिसाब से पैदा होती है। लेकिन आजकल क्या होता है कि कहीं भी कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है, तो बेमौसम की चीजें ज्यादा दिखाई देती है। और इस चीज के पीछे अगर देखा जाए तो वही एक सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां, नई नई बीमारियां हमारे सामने आ रही है, चैलेंजेस हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो 10 साल के, 20 साल के, 25 साल के, वो डायबिटिक हो रहे हैं। आजकल सुनने में आ रहा है कि 20 साल का बच्चा है और वो इंसुलिन ले रहा है, 30 साल का बच्चा है वो इंसुलिन ले रहा है, और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है। लेकिन हम लोग डायबिटीज से बात कर रहे हैं, इसलिए डायबिटीज पे ही बात करेंगे अभी। तो डायबिटीज की जो बात है उसमें मैंने ये भी सुना है कि आजकल प्री डायबिटिक नई टर्मोलॉजी आई है। प्री डायबिटिक, प्री डायबिटिक क्या होता है और उसको लेके क्या है कि जैसे किसी डॉक्टर ने उसको कहा कि प्री डायबिटिक है, तो वो तुरंत घबरा जाता है। उसके बाद में उसकी या तो कुछ पिल्स चालू कर दी जाती है, या फिर उसके ऊपर कुछ कई तरह के जो है बाउंडेशन लगाए जाते हैं, और उसको दवाई चालू करके फिर उसके बाद में ये खाना है, ये नहीं खाना है। लेकिन जो सही चीज है वो नहीं बताई जाती, पिल्स जरूर चालू कर देते हैं। आजकल जैसे मॉर्निंग में सबका ब्रेकफास्ट में चाय, कॉफी, या कोई ना कोई सैंडविच है, उपमा है, जो वेजिटेरियंस हैं, या फिर जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो लोग ऑमलेट है, लाइक दैट। और प्रोटीन के लिए तो बहुत ज्यादा पैनिक है, क्योंकि मैं जब लास्ट ईयर यूएस में था, तो जब मैं कई जगह गया वहां पर, और कई जगह जाने के बाद में बहुत सारे लोगों से मिला, तो प्रोटीन की बात मैंने हर जगह सुनी। प्रोटीन कितना जरूरी है, क्यों जरूरी है, कब जरूरी है और किसके लिए जरूरी है। हम उसी चीज को खाएं जो हम डाइजेस्ट कर सकते हैं। अगर हमने जो चीज खाई अगर उसको डाइजेस्ट नहीं करेंगे तो वो जाके हमारे पेट में डंप हो जाएगी, और जो चीज डंप होगी तो वो सड़ेगी। एक बहुत बेसिक चीज है ये। अगर आप लोग किसी भी चीज को लाते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग कोई बाजार से भी कोई चीज लाते हैं, फ्रूट्स लाते हैं, वेजिटेबल्स लाते हैं, उसको फ्रिज में भी रख लें आप, लेकिन एक कुछ समय के बाद में वो भी सड़ने लग जाता है, फ्रिज में भी वो नहीं रह पाता। ऐसे ही पेट भी है, लेकिन पेट में हम लोग सफाई का बिल्कुल ध्यान दे नहीं पाते, उसकी क्लिनजिंग कर ही नहीं पाते उसकी। और ये सोचते हैं कि हमने जो पेट सुबह साफ किया था वो एकदम साफ हो गया, तो हम लोग सोचते हैं कि अब तो खा लो, जो है भर ना, पेट खा लो। एंड दैट्स द ओनली रीजन कि जो ये डिजीजेस इस तरह की जो पैदा हो रही है, डायबिटीज है, या हार्ट की प्रॉब्लम्स है, या बीपी की प्रॉब्लम्स है, थायराइड है, और फिर उसके बाद में दवाइयां शुरू होती है, लेकिन दवाइयां ठीक नहीं कर पाती दवाइयां, बल्कि उसको सिर्फ आपको एक बार विश्वास दिला देती है कि हाँ आप ठीक हो, लेकिन वास्तव में ठीक नहीं हो, स्टेबल हो खाली आप। थायराइड तो है ही ना आपके, क्योंकि आप दवाई ले रहे हैं। डायबिटीज है ही ना आपके, क्योंकि दवाई ले रहे हैं। डायबिटीज होनी ही नहीं चाहिए दवाई अगर आप ले रहे हैं तो। आज मेरे पास में ऐसे थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स हैं जिनको हमने डायबिटीज से बाहर निकाला है, जो 2-2 टाइम पे इंसुलिन ले रहे थे और वो आज डायबिटिक फ्री है, उन्हें डायबिटीज नहीं है आज। तो जबकि कहा जाता है कि अगर घर में किसी एक जन के डायबिटीज हो गया तो उसके बेटे को भी हो सकता है, उसके बेटे को भी हो सकता है। मतलब उसको क्या बना दिया, उसको एकदम से पूरे पारिवारिक बीमारी बना दी है, उसको अनुवांशिक बीमारी बता दी है उसको। ऐसा है ही नहीं बिल्कुल भी।
अगर ऐसा होता तो जो हमने लोगों को ठीक किया वो ठीक ही नहीं होते। और ये कोई खून की बीमारी है ही नहीं, लेकिन फिर भी इसको खून की बीमारी से जोड़ दिया गया है, हेरिडिटरी बता दिया इसको कि ये हेरिडिटी है। ऐसा नहीं है। अगर हम अपने रहन सहन खान पीन में अगर ध्यान रखते हैं तो हम इसे बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी बात आती है कि कोई एज फैक्टर अगर लोगों को होती तो जो आज यंग 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का, मैंने अभी पिछले दिनों एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। जब मैंने लोगों को, बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया, उसमें तो 20 से 30 साल के जो लोग थे वो इसलिए रिजेक्ट हो गए कि उनमें से किसी को डायबिटीज थी, किसी को बीपी था। आई वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड कि मतलब ये क्या हो रहा है कि एक छोटी सी एज है जिसमें बॉडी के अंदर इतने मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, उसके बाद में आप दवाइयां ले रहे हो इतनी सारी बीमारी के लिए। तो ये बेसिक चीज, अगर हमें जीना है तो जीने के लिए खाना है, न कि खाने के लिए जीना है। हाँ ठीक है, जीवन में मस्ती से जीना चाहिए, लेकिन मस्ती के अंदर ऐसी गलतियां क्यों करें जो हमारी बीमारी बन जाए। आजकल पैक्ड फूड देखिए आप, पैक्ड फूड के बारे में कितना आ रहा है कि सब प्रिजर्वेशन होता है उसमें, उसमें प्रिजर्वेटिव इतना ज्यादा मिलाया जाता है जिसकी हद नहीं है। कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके पैकेट के ऊपर जो डिटेल्स दी जाती है वो डिटेल्स भी मतलब देखा जाए तो इनकम्प्लीट होती है या फिर वो फेक होती है, उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात एक है कि जो सोने का टाइम है आपका, रात को 10 बजे आप सो रहे हैं और उस समय आप जो खा रहे हैं, क्या वो डाइजेस्ट होता है क्या? वो डाइजेस्ट होता ही नहीं है। जितने भी संसार में प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो सोते वक्त खाता है, लेकिन इंसान तो सोते वक्त भी खाएगा। तो जब आप खा रहे हैं, पेट में पड़ेगा, सड़ेगा, तो सड़ेगा ही ना, वो आप पे फिर बीमारी पैदा करेगा। इसको इस तरह से समझिए आप। हम लोग रोज खाना बनाते हैं, खाना बनाने के बाद में बर्तनों को हम सिंक में डाल देते हैं वॉश करने के लिए। एम आई राइट? सिंक में इसे डालते हैं कि उसको साफ सफाई करेंगे, उसके बाद में जो उसमें बर्तनों में थोड़ा सा कुछ ना कुछ इटिबल्स बच जाता है उसमें, वो जाके उसके पाइप में कई बार अटक जाता है और कुछ दिनों बाद में वो चौक हो जाता है, जाम हो जाता है वो। तो उसकी सफाई की जाती है, तब जाके वो आराम से वापस से उसमें पानी वगैरह से उसमें पास हो सकता है। यही पेट में भी सिस्टम है, क्योंकि हमारे गले से, हमारे यहाँ से पाइप सिस्टम शुरू होता है जो हमारे एनस तक चलता है। अगर उसमें कोई भी चीज जाएगी और निकलेगी नहीं तो वो सड़ेगी, और सड़ेगी तो आपके जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, लाइक पैनक्रियाज है, लीवर है, किडनी है, इंटेस्टाइन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसमें वो जो अंग है वो सड़ेंगे, सड़ेंगे तो ये प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो जितना हमें खाने का ध्यान देना है उतना ही हमें पेट पे साफ सफाई का भी ध्यान देना है कि हमें, हमारा पेट कैसा है। लोग खाली ये सोचते हैं कि मैं सुबह गया था, स्टूल पास किया मैंने, दैट्स इट, ओके। तो ये चीज जब तक हम नहीं समझेंगे तब किसी भी बीमारी से हम लोग नहीं बच सकते। आज इस चीज को समझ के ही, क्योंकि ये जितने भी मैं एग्जांपल्स आज दे रहा हूँ, आप हमारा ये सेशन आज फर्स्ट सेशन है, हम आगे भी बहुत सारे सेशन जो लेंगे अलग अलग डिजीज पे, एक एक चीज जब हम क्लेरिफाई करेंगे। मैंने जितनी भी चीजें आज जो मेरे पास में है या मैं लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, तो मैंने एक एक चीज के ऊपर खुद के प्रयोग करे हैं, खुद के अपने रिजल्ट्स निकाल के उसके बाद में आज यहाँ पहुंचा हूँ। जब शुरुआत करी इस सफर की तो उस समय कोई डॉक्टर नहीं था, बाद में तो मैंने पढ़ाई करके और जो और इसके बाद में थोड़ा सा मैंने और इसमें अपनी नॉलेज को उसमें बढ़ाया है, तो वो मैं जानता हूं कि उसके सारे एक्सपीरियंसेस, उसके जो बेनिफिट्स मिले हैं मुझे और लोगों को, ऑल दे वर अमेजिंग, सरप्राइजिंग, मतलब उसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर क्या आप बताएंगे, जैसे मैं एक स्पाइन का पेशेंट हूँ, मेरी जो लोअर स्पाइन पे जो नर्व्स होती है वो डैमेज हैं, और मुझे बहुत सारी बीमारियां हैं और होती रहती है, मतलब कभी कोई ठीक हुई, कोई बीमारी हुई। और जो आप कह रहे हैं एक्चुअल में सही कह रहे हैं। मुझे एक्चुअल में पेट की प्रॉब्लम है, पेट सही से साफ नहीं होता है, और ये एक मतलब रेगुलर सभी का ही है, लेकिन मैं थोड़ा बीमार हूं तो मेरा और ज्यादा हो रहा है। तो क्या चीजें हमको इग्नोर करनी चाहिए, क्या एब्जॉर्ब करनी चाहिए, क्या अपनानी चाहिए, क्या आप बताएंगे? आशीष जी, देखिए क्या है कि